Hello everyone and welcome to Sambhav Law. In today's session, we have with us Prateek, who has scored a very good score in the CET LLM exam of 2023, and currently he is a student of BHU 2-year LLM program. And accordingly, he is here to share with us his story as to how he prepared for the exam. And accordingly, he will also tell us about as to how good of a college BHU is from the point of view of while you're preparing for judiciary, or if you talk about your career in academics, or whatever the scope is inside BHU, we'll be talking about that in this particular session. So according to Prateek, I would like to welcome you to the channel. Thank you so much, sir. First of all, I'm grateful to you, sir, for inviting me on this your platform. And hello, everyone. Myself, Prateek Rangdale. I basically belong to the district Balaghat in Madhya Pradesh. I have completed my graduation from the Government New Law College Indore. Thereafter, I appeared in the CUET PG LLM examination 2023, and wherein I scored 275 marks. And thereafter, I took an admission in the Banaras Hindu University itself, and currently I am pursuing the LLM 2-year program from the BHU itself. Yeah, so Prateek, if I just come to my first question, while we see the CUET exam, and there are a lot of subjects, and in your time there also was part A. So how did you go through the preparation and everything? How did you manage it? Yes, sir. So as we all know that the in so far as the present syllabus is concerned, the part A has been scrapped. But when I gave the examination, there was two parts, that is the part A and part B. So coming to the part A, as it includes the subjects like the ability, the logical reasoning, the mathematics, and so on. So the my main focus was just to first get over whatever I could have done in so far as the part A is concerned. Because sir, कई बार होता है जब आप जीके की बात करेंगे, इंग्लिश की बात करेंगे, आप जितना टाइम देंगे, इट्स नॉट पॉसिबल एवरी टाइम कि जितना आपने पढ़ा हो उतने से आप कवर कर ले उस पेपर को। सो आप यही कोशिश करें कि आप जितना आप लॉ के जो आपका सब्जेक्ट्स है, आप जितना उस पे कमांड कर सके, जितना आप वहाँ स्कोर कर सकें, बिकॉज़ इट्स नॉट सर्टेन कि यदि आप 100 क्वेश्चंस जीके के पढ़ के जा रहे हैं, तो 100 क्वेश्चंस आपके जीके के वहाँ आ ही जाएँगे। सो मैंने यही कोशिश किया कि जो मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स थे, जहाँ से मैं इंग्लिश या मैथमेटिक्स थ्रू मॉक्स या प्रैक्टिसेस कर सकता था, दैट आई डिड एट दैट टाइम। एंड thereafter when it comes to the part B, because हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, 30 if I'm not mistaken, we have 30 or 30 and 31 and 32 subjects. So every time we have been taught, if you want to crack any of the competitive examination, first you need to understand what actually exam requires from us. Because ये नहीं है कि आपको मास्टर्स करना है हर सब्जेक्ट में यहाँ आके। यू द बेस्ट थिंग जो आपकी वीडियो से मुझे सीखने मिली थी, दैट वाज द कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द सब्जेक्ट। आपको डिवाइड करना पड़ता है सब्जेक्ट को कि किस तरीके से आप प्रेफरेंस देने चाहते हैं, बिकॉज आपको हर सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। आप डिवाइड करें अपने सिलेबस को, जो मेजर लॉज़ है आप उनको प्रेफ़रेंस दीजिए, एंड सब्सिक्वेंटली जैसे कुछ लॉज़ होते हैं लाइक टैक्सेशन एंड कंपनी लॉज़ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तब उनकी मैंने सिर्फ़ मार्क्स लगाए थे। और जब बेरेट से आप सेक्शन वाइज़ भी यदि आपने एक वन गो में गो थ्रू कर लिया है, सो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, और वहाँ आप एक एज ले सकते हैं ओवर द अदर पार्टिसिपेंट्स। I see. So Prateek, if I come to the part that अभी जैसे 40 दिन के आसपास बचे हैं एग्जाम को, मार्च में अपना होना है 11 से 28 के बीच में कभी भी। सो आप मतलब स्टूडेंट्स को क्या मतलब एक मतलब बताओगे कि कैसे मतलब प्रिपरेशन अब जो बचे हुए टाइम में है कैसे करनी है? कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी शुरू किया होगा, कुछ अभी जो कि 3-4 महीने से कर रहे होंगे, रिवाइज करना होगा उनको, मतलब आप कैसे उस चीज़ को पूरा बताओगे? सर जैसा आपने खुद पॉइंट आउट किया कि सर देयर वी हैव टू कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स। हमेशा कोशिश तो ये की जाती है कि जब आप सीयूईटी की प्रिपरेशन करें तो एटलीस्ट आपको 3 to 4 months पहले स्टार्ट कर देना चाहिए। यू शुड हैव मेड अप योर माइंड। उन बच्चों के लिए तो बस यही है कि इफ क्योंकि आपने मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ यदि आप 3-4 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका मतलब आपने एक बार तो गो थ्रू अपने सारे सब्जेक्ट्स कर लिया है। नाउ यू आर व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू ओनली, कि आप जितना क्वेश्चंस लगाएँगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगा, बिकॉज़ देयर आर टू फोर्स के बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट वन, एक तो आपको एक जनरल आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड द सेकंड वन, की क्वेश्चंस कई बार रिपीट भी होते हैं। सो यू माइट गेट दोस क्वेश्चंस एज वेल इन योर पेपर, दैट व्हाट यू हैव गॉन थ्रू इन योर व्हाटएवर द रिसोर्सेज दैट यू आर रिसोर्टेड टू। अनदर थिंग, अब जो स्टूडेंट जो अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, फर्स्ट तो रिक्वायरमेंट ये है कि जो आपने अपना जो भी लॉ कोर्स किया है, यदि आपने जस्टिस किया है अपनी स्टडी के साथ, आपने ऑनेस्टली स्टडी किया है, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा इफ यू जस्ट गो थ्रू ऑन वन गो। यदि आप रिवाइज कर लेते सब्जेक्ट्स को, जिस बेराइट भी आप पढ़ लेंगे, तो दैट वुड बी इनफ। और जो रीसेंट केस लॉज हैं,
आप उस पे कोशिश करिए, ज़्यादा फोकस करें। बिकॉज़ ये होता है कई बार, जो भी अभी रिसेंट इवेंट चल रहे हैं, वहाँ से केस लॉज़ आपको उठा के पूछ लेगा और रेशियो पूछ लेगा, जो भी बेंच पूछ लेगा, और भी मल्टीपल एस्पेक्ट्स वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप ये आप ये कोशिश कर सकते हैं कि जितने आप, जैसे बुक्स आती है, सिंगल्स हो गई, यूनिवर्सल हो गई, या जो संभव सर की मॉक्स है, ये आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे प्रैक्टिस करने में। बिकॉज़ जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप पूरा सिलेबस भी पढ़, बिकॉज़ पढ़ना एक अलग चीज़ होती है और एग्ज़ाम क्रैक करना अलग चीज़ होती है। हम्म। बिकॉज़ इट वाज़ माय फर्स्ट टाइम, मैंने जो एक्सपीरियंस किया, इससे पहले मैंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कभी नहीं दिया था। बट व्हेन यू सिट ऑन द कंप्यूटर, वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है आपके लिए। तो आप ये कोशिश करें कि आप प्रैक्टिस भी करें, और ऑनलाइन मॉक्स जितने आप दे सकें, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा इस चीज़ में कि आप कंड्यूसिव हो जाएँगे, आप यूज़्ड टू हो जाएँगे उस एनवायरनमेंट से। सो इट विल गिव यू एन एज ओवर द अदर पार्टिसिपेंट्स फॉर श्योर। नहीं, आया बिल्कुल, मतलब ये बात आपने बहुत ही सही आपने पॉइंट आउट करी है प्रतीक, कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपार्टमेंटलाइजेशन सब्जेक्ट्स का, ये पता होना कि हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। उसके बाद फिर जो प्रैक्टिस वाला पोर्शन है, सारे ही पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए किसी भी स्टूडेंट के लिए इस पर्टिकुलर टाइम पे, कि हाँ भाई हमें इस तरीके से इस चीज़ को करना है डेफिनेटली। अच्छा प्रतीक, इफ आई कम टुवर्ड्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अब हम लोग बात करते हैं बीएचयू की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है एक बहुत ही ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि मतलब जिसको जाना जाता है कि यहाँ से काफी स्टूडेंट्स जुडिशरी क्रैक करते हैं, या फिर उसमें एकेडमिक्स में काफी वो रहता है। सो कहाँ तक ये चीज का स्कोप, आप जब आप वहां से एलएलएम कर रहे हो, आपको दिखता है वहां का पढ़ाई किस तरीके का, हाउ डज लाइक कैसा है बीएचयू का एक्सपीरियंस आपका? सर, अभी तक के सो फार मैं बीएच में, सर इट वाज रियली अ ग्रेट एंड नाइस एक्सपीरियंस। बट जब आप, कई बार जो मेन डिफिकल्टी मैंने फेस करी है व्हेन आई वाज अबाउट टू चूज विच ऑफ द यूनिवर्सिटीज दैट आई शुड अप्लाई फॉर, जैसे डीयू और बीएचयू मेन ऑप्शंस रहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। सो इट वुड बी कंप्लीटली अनजस्ट टू गिव एन हार्ड एंड फास्ट स्टेटमेंट कि डीयू बेटर है, बीएचयू बेटर है, बिकॉज इट इज एन एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन माई व्यू। सो फार मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, बिकॉज कई सारी चीज़ें आपके डिसीजन को अफेक्ट करती है, लाइक आपकी पर्सनल चॉइसेस क्या है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ए करियर प्रोस्पेक्टस। बिकॉज दोज स्टूडेंट्स जो कि जुडिशरी के लिए जाना चाहते हैं, उनको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बीएचयू में मिलता है। आई शेयर जस्ट फ्यू थिंग्स जो बीएचयू आपको प्रोवाइड करता है फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द जुडिशरी, कि यहाँ जो बच्चे यहाँ के साथ पढ़ेंगे, दे ऑल आर दी सर्विस ओरिएंटेड होंगे। तो एवरी टाइम आप हॉस्टल में रह रहे हैं, आपको फैसिलिटीज मिल रही है, और जब आपका जो एक एनवायरनमेंट है वो कंप्लीटली सिमिलर माइंडेड पर्सन्स के साथ है, आपके फ्रेंड्स जो आपके साथ क्लास में बैठ रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, वो भी प्रिपेयर मल्टीपल स्टेट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एक जो डेलिब्रेशन होता है, वो भी आपका उन्हीं टॉपिक्स पे होता है, जुडिशरीज को लेके होगा। तो वो एक इकोसिस्टम आपको प्रोवाइड करता है, एंड एवरी टाइम यू ट्राई टू पुश योर सेल्फ अ लिटिल फर्दर। तो ये एक चीज़ होती है कि जो आपको कंडूसिव एनवायरनमेंट बनाती है। सेकंड थिंग दैट आई गॉट टू नो व्हेन आई वाज अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, इट माइट बी रॉन्ग एज़ वेल, बट कि जो मैंने सुना कि डीयू में एक जो एकेडमिक एक्सरसाइज होती है, वो लिटिल बिट ट्रिगोरस होती है। So I thought कि it won't be possible or feasible for me to give an ample amount of time that the judiciary preparation is required. So ये एक चीज़ थी जिसने मुझे पुश किया अब बीएचयू में अप्लाई करने के लिए। एंड अनदर थिंग कि आपको बहुत सारा सपोर्ट आपको फैकल्टी से भी मिलता है, नो डाउट। यदि आप अप्रोच करते हैं कि सर मुझे हेल्प चाहिए या किसी प्रकार से मुझे थोड़ा गाइडेंस चाहिए आपका, दे विल श्योरली हेल्प यू। ये और बीएचयू इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रेसिडेंशियल जो एशिया में यूनिवर्सिटी है। वो एक वेरियस डिसिप्लिन से बच्चे आते हैं, एक एक्सचेंज ऑफ थॉट्स का एक कल्चर है यहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बीएचयू प्रोवाइड करता है फॉर योर ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, एंड एज वेल एज फॉर जुडिशियल प्रिपरेशन। But on the other hand, if you want to go for the litigation or the practice, in my view, you should opt for the DU, because prestige में DU भी उतना ही है जितना BHU है. So it's all about your element of subjectivity, your personal choices, and other incidental factors भी होते हैं जो आपके डिसीजन को जो है कुछ बहुत हद तक के जो अफेक्ट करते हैं. सो प्रतीक, जैसे आपने एक बहुत ही सही चीज पॉइंट आउट करी कि लिटिगेशन एक बहुत ऐसा, मतलब लिटिगेशन या प्रैक्टिस, बिकॉज क्या है कि दिल्ली के अंदर अगर आप अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है, लॉ फर्म्स और आपकी जो पूरा एक इकोसिस्टम है दिल्ली के अंदर, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, कई सारी वो भी है। तो वहां का जो एक आपका वो मिलता है अप्रोच, वो थोड़ा सा एक बेटर होता है कंपेयर तो अगर हम लोग बनारस की बात करते हैं, बिकॉज वहां पे लिटिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे अगर मान लो आप मतलब किसी भी उसमें अगर आपको मान लो थोड़ा भी अगर जाना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक बात होती है। जहां तक बात है रही बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी की, दोनों यूनिवर्सिटी अपनी जगहों पे अच्छी है।
और डिपेंड आप इस पे करता भी है कि आप जैसे कहाँ पे रह रहे हो। जैसे अगर मान लीजिए अगर आप यूपी मतलब वेस्ट साइड से हो, जैसे आप मध्य प्रदेश से हैं, तो कई लोग एक ज्योग्राफिकल उसको भी लेके चलते हैं। तो मतलब आपके एक्सपीरियंस में ये चीज आपने कितनी देखी है कि ज्योग्राफी की वजह से इसके अंदर मतलब लोगों ने सिलेक्ट किया हो उस चीज को। यस सर। सर मैं इनमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने फ़ील करी है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो हम जब यूपी और बिहार, झारखंड स्टेट की बात करते हैं, वी हैव द कल्चर ऑफ सर्विस ओरिएंटेड। जो फैमिलीज़ होती है काफ़ी सर्विस ओरिएंटेड होती है, एंड दैट्स व्हाई दे टुक एडमिशन इन द बीएचयू, बिकॉज़ बीएचयू आपको प्रोवाइड करता है एक इकोसिस्टम जहाँ आप जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन कर पाते हैं और अपने ड्रीम को अचीव कर पाते हैं। तो इसलिए मोस्टली आपको बीएचयू में जो पर्सन्स, जो स्टूडेंट्स मिलते हैं, वो आपको ईस्टर्न पार्ट से ही देखने मिलते हैं, लाइक द स्टेट्स लाइक झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। बट व्हेन इट कम्स टू द डीयू, आपको अक्सर वहाँ पे जो बच्चे मिलेंगे, स्टूडेंट्स मिलेंगे, वो अक्सर जो यूपी का जो आपका नॉर्थर्न नॉर्दर्न एरिया है, लाइक मेरठ से होंगे या नोएडा साइड से होंगे या और अदर पार्ट्स ऑफ स्टेट से होंगे। सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, इट वुड बी कंप्लीटली अनजस्ट टू गिव अ प्रेफरेंस टू द वन इंस्टीट्यूशन ओवर द अदर। इट्स ऑल द डिसीजन ऑफ द योर पर्सनल चॉइस, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन इट। और अब डिपेंड करता है आपका करियर प्रोस्पेक्टस क्या है, किस चीज़ व्हाट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड। तो ये चीज़ें होती है जो डिटरमाइन करेंगे विच इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन दैट सूटेड टू योर पर्सनैलिटी and to your requirements. एंड अकॉर्डिंगली प्रतीक, इफ आई गो फॉर द फैक्ट कि जो बीएचयू है वहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की, फैकल्टी की और बाकी जो आपकी चीज़ें होती जो कि एक स्टूडेंट कंसिडर करता है बिफोर ज्वाइनिंग अ कॉलेज, आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर नो डाउट, एज हम जानते भी कि जो बीएचयू की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसको इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, अदर जो इंडिया में जो है बेस्ट जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो अवार्ड है, वो भी बीएचयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी को दिया गया है। और बीएचयू ने, जो मैंने फील किया है कि फैसिलिटीज़ जो है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड ज़्यादा है, कि हर कोशिश ये की जाती है कि जो स्टूडेंट की इंटरेस्ट है उसको सर्व किया जा सके, चाहे वो एकेडमिक हो, फाइनेंशियल हो या किसी भी और तरीके से हो। जब आप फैकल्टी की बात करते हैं तो यहाँ भी आपको जो लॉ फैकल्टी में बीएचयू में आपको हर तरीके से बुक्स, ह्यूज नंबर ऑफ रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड किए गए हैं, बुक्स प्रोवाइड करी गई है, आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई है, एंड अदर देन जो है एडमिनिस्ट्रेशन की भी साइड से अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है। लेक्चर्स आपके होते हैं, तो और टीचर्स जो बेस्ट थिंग है यहाँ पे, टीचर्स आपके सपोर्टिव है, वो आपको जरूर सपोर्ट करते हैं वट एवर यू आर एमिंग फॉर। इट डजेंट मैटर कि आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लिटिगेशन की कर रहे हैं या फॉर एनी अदर करियर पर्सपेक्टिव्स आप सोच के आए हैं। आई सी। एंड जैसे अगर हम लोग बात करते हैं प्रतीक की, बीएचयू के अंदर एक जो चीज़ हम लोग और देखते हैं कि जो वहाँ की डिग्री की वैल्यू है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग एकेडमिक्स में अगर जो जाना चाहते हैं वो लोग काफ़ी बीएचयू को प्रेफर करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहोगे कि वहाँ का इन्वायरमेंट कितना अच्छा रहेगा किसी स्टूडेंट के लिए अगर वो उस तरीके से अपना करियर वो करना चाहता है? यस सर, नो डाउट, क्योंकि यहाँ भी जो आपको रिनाउंड प्रोफेसर्स मिलेंगे, वो सब क्योंकि उनका मेथडोलॉजी है पढ़ाने का, वो कंप्लीटली एक इन डेप्थ कॉन्सेप्ट आपको डिटेल देते हैं। एंड द सेकंड थिंग कि जब आप सीयूटी की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो सिलेबस होता है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो जाता है। जैसे आप यूजीसी नेट का पेपर देते, जेआरएफ का पेपर देते, तो मोस्टली सिलेबस आपका वहाँ कवर हो जाता है। तो जो माइन्यूट सा डिटेल होता है वो इन डेप्थ का जो होता है, बिकॉज सीयूटी में हम उतना डेप्थ में नहीं जाते, पर नेट जेआरएफ में आपको थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ता है। ये फर्स्ट थिंग। और सेकंड जो कल्चर यहाँ पे है, दैट कि एवरी टाइम द पर्सन एंटर इनटू द एलएलएम प्रोग्राम, द फर्स्ट थिंग ही, द सबसे पहली कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो फेस करता है वो, दैट इज अ नेट जेआरएफ। ईच एंड एवरी स्टूडेंट, हो सकता है देयर माइट बी अ मिनिमल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु माइट बी एस्पायरिंग फॉर द लिटिगेशन एज वेल, बट जो मोस्टली आपको पर्सन दिखेंगे, दे आर जुडिशरी ओरिएंटेड और द प्रोफेसरशिप ओरिएंटेड। तो ये दो चीजें जो है यहाँ मेन जो बीएचयू पे जो बच्चे अक्सर फोकस करते हैं। आई सी। एंड जैसे अगर मैं बात करता हूँ प्रतीक, जैसे इफ यू टॉक अबाउट हॉस्टल की बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हॉस्टल मतलब किस तरीके का है बीएचयू का अगर हम लोग बात करें तो? सर इसमें भी आपको 2 डिवीज़न देखने मिलेंगे। अब यदि आप बॉयज़ हॉस्टल की बात करेंगे तो बॉयज़ हॉस्टल सेपरेट फैकल्टीज़ के लिए आपके अलग-अलग हैं। बाकी गर्ल्स हॉस्टल जो 1-2 है, जो बिल्डिंग्स बनाई गई है अलग से, जिसमें कंपाइल मतलब हर डिसिप्लिन से बच्चे रहते हैं। इसमें भी बट ये है कि सभी बच्चों को हॉस्टल अलॉट नहीं कर पाता है बीएचयू, ड्यू टू द माइट बी द इकोनॉमिक और
एनी अदर रीजंस, बट जो उसमें भी जैसे सीट्स रिजर्व रहेगी तो 10 to 15% जो है सीट्स रिजर्व करी जाती है हॉस्टलर्स के लिए, और आपके जो स्कोर होता है, जो एक स्कोर्स के बेसिस पे मेरिट बनती है, एंड ऑन दैट बेसिस वो जो आपको हॉस्टल अलॉट करते हैं। हॉस्टल का सबसे बेस्ट वे बेनिफिट होता है कि आपको हर चीज, अब जो चीज़ है, हर जो रिसोर्सेज व्हाट यू रिक्वायर फॉर जुडिशियल प्रिपरेशन, वो आपको इजीली एक्सेसिबल हो जाता है, वेदर इट्स फैकल्टी वेदर एनीथिंग एल्स। तो ये चीज़ें एक होती है, आपका बहुत टाइम बचता है, और आपको एक कहीं ना कहीं एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है हॉस्टल फैसिलिटीज। बाकी आपको दूसरी चीज़ों के लिए यू आर नॉट सपोज टू मूव फ्रॉम पिलर टू द पोस्ट फॉर एवरी अदर थिंग्स। कहीं ना कहीं। एंड पता है, जैसे इसमें एक चीज हम लोग ये भी देखते हैं बीएचयू के अंदर कि जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, हम लोग बात करते हैं वहाँ का जो आपका सेंट्रल लाइब्रेरी है, ये सब चीज़ें हैं, ये भी काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स को हेल्प करती हैं कहीं ना कहीं जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए, वो भी बहुत ही वो है। और कहीं ना कहीं जो एक मतलब जो कहते हैं कि एक लाइफ आप जो एक शेड्यूल बनाने वाली बात आप कह रहे थे, उसके अंदर कितना कंड्यूसिव रहती है ये जो आपके फैक्टर्स होते हैं, उसके हिसाब से आप क्या कहोगे? सर द जो एक्चुअली हम फेस करते हैं उसको हम रिलेट करें कि बैचलर में जब हम प्रॉब्लम फेसेस करते हैं तो हमारा मोस्टली जो टाइम होता है वो इन्हीं चीज़ों में जाता है, एंड दैट वाज द बीएचयू जो एक है आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, लाइक फूड फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी, आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, हर चीज़ करते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो मेन ये फोकस कर सके अपनी स्टडी पे, आप लोग फोकस कर सके। तो ये एक प्राइमरी एम है यूनिवर्सिटी का भी, कि बच्चे जो है मेन अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सके और एस्पायर कर सके और टू स्ट्राइव फॉर द एक्सलेंस। ये जो अदर देन जो आप जब डीयू में देखेंगे, जितना मैंने सुना है कि एक हॉस्टल फैसिलिटी शायद बहुत कम बच्चों को मिल पाती है, ऑल्दो अदर चीज़ों में डीयू में बहुत सारी चीज़ें, बट सो फार एज द हॉस्टल फैसिलिटी इज कंसर्न, द बीएचयू हैज लिटिल बिट एज ओवर द अदर यूनिवर्सिटीज, एंड दे और ये चीज़ है जो बच्चों को बहुत काफ़ी तक के इंस्पायर भी करती है और अट्रैक्ट भी करती है टू अप्लाई फॉर द बीएचयू। हाँ, नहीं, ट्रू दैट, वो भी है कि अब देखिए हर यूनिवर्सिटीज के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है, दिल्ली के अपने अलग एक वो है, इसका अपना अलग वो है, हर उस पे क्राइटेरिया अलग अलग रहती है। अच्छा, जैसे अगर मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि बीएचयू के अंदर हम लोग को जो एलएलएम होता है आपका, 2 साल के एलएलएम होता है, एक एचआरडी होता है, एक नॉर्मल होता है, और फिर आपका 1 ईयर का एलएलएम होता है, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता सकते हैं। Yes, sir. So we have three kinds of LLM program over here in the BHU. The first one is the LLM 2 year general program, जहाँ पे आपको जो वर्नाकुलर या ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स है, लाइक जो जुडिशरीज में आते हैं, लाइक पर्सनल लॉ, क्रिमिनल लॉ और द जूरिस्प्रूडेंस, ये आपको पढ़ने मिलते हैं। द सेकेंड वन इज द LLM HRD, जहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स लाइक द जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, एनवायरमेंटल लॉ, ये इस प्रकार के आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने मिलते हैं। एलएलएम 1 ईयर में ये होता है कि जो आपका करिकुलम होता है 2 ईयर का, उसको कोशिश की जाती है कि जितना कम किया जा सके। बट ये डिफरेंस होता है कि जो 1 ईयर एलएलएम होता है, वो आपका थोड़ा-सा हेक्टिक हो जाता है ड्यू टू द टाइम कॉन्स्ट्रेंट, कि यदि एनीवन स्टूडेंट जो भी एस्पायर कर रहा है कि हमें इन डेप्थ लॉ में भी पढ़ना है, मास्टर्स में भी पढ़ना है, आई वुड सजेस्ट कि यदि आपको एलएलएम में पढ़ना है बहुत इन डेप्थ में, तो आप प्रेफर करें 2 ईयर एलएलएम प्रोग्राम, बिकॉज एक तो सेशन भी आपका लेट कई बार शुरू होता है, फिर आपका डेजर्टेशन का काम, आपका वर्क एकेडमिक वर्क आ जाता है, तो ये कहीं ना कहीं आपका जो पढ़ने का एक जील है, एक इंक्विजिटिवनेस है, वो कहीं ना कहीं आपकी हैम्पर होती है। एंड इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर द जुडिशरी, तो इट वुड बी बेटर आप 2 ईयर एलएलएम प्रोग्राम भी ले सकते हैं, एंड द 1 ईयर प्रोग्राम वुड ऑल्सो बी इनफ, क्योंकि 1 ईयर एलएलएम के बाद आपके पास इनफ टाइम भी बच जाता है कि आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, वैसे प्रतीक, इफ आई जस्ट आस्क कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में कि जो 1 ईयर एलएलएम में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं कंपेयर टू 2 ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो हेक्टिकनेस एक होती है कि हाँ भाई जो सिलेबस है जल्दी जल्दी हो रहा है, बाकी चीजें हो रही, क्या इससे फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा, या मतलब आपके हिसाब से कैसी रहती है चीजें? और प्लस जो आपका आगे चल के बात आती है टीचिंग में, जब आप जाते हो तो 1 ईयर वर्सेस 2 ईयर एलएलएम को भी लेके एक डिबेट होती है, उसके ऊपर आप क्या कहोगे? सर इट वुड बी अनफेयर यदि मैं ये कहूँ कि कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाता है हेक्टिकनेस में। नो डाउट हेक्टिक होता है, बिकॉज आप जो मैं चीज़ 2 साल में करने वाला हूँ, वो 1 ईयर स्टूडेंट को 1 साल में करनी होती है, तो कहीं ना कहीं हेक्टिक रहता है, उसका इफेक्ट को सेट असाइड नहीं कर सकते, रूल आउट नहीं कर सकते। बट यस, आपका ये है कि आपका टाइम बच जाता है, 1 ईयर में आपको मास्टर्स की डिग्री मिल जाती है, एंड दे आफ्टर यू कैन अप्लाई फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एज वेल। ये आपको एक एज मिल जाता है। और जब आप टीचिंग या प्रोफेसरशिप की बात करते हैं, यस, हमने कई बार देखा है कि ये भी सब्जेक्टिविटी पे डिपेंड करता है। कई यूनिवर्सिटीज़ में जो है
प्रेफर करा जाता है कि जो 2 ईयर एलएलएम प्रोग्राम से जो आ रहे हैं बच्चे, उनको प्रेफर किया जाता है। बट देयर इज नो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला कि ये डिफरेंशिएशन की 1 ईयर को हम प्रेफरेंस नहीं देंगे, हम 2 ईयर को प्रेफरेंस देंगे। द बोथ आर इक्वल ऑन द सेम पेडेस्टल। इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्टिविटी ऑफ ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी और द इंस्टीट्यूशन हु आर हायरिंग द प्रोफेसर्स और रिक्रूटेड देम। या बिकॉज ये डिपेंड इस पे करता है कि अगर एक ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी है तो वो 2 ईयर वाले जो आपके स्टूडेंट्स होंगे उनको थोड़ा सा एक एज इसलिए देते हैं क्योंकि जो एक्सपीरियंस मानते हैं वो लोग की जो लीगल मतलब पेडागोगी है, पढ़ाने का तरीका है, और जो डेप्थ ऑफ नॉलेज, मतलब काफी चीजें हैं, वो 2 ईयर वालों की कंपेयर टू 1 ईयर बेटर है कहीं ना कहीं। तो वो भी एक यस। आप कह सकते हो फैक्टर कंसिडर किया जाता है यस। भाई। और कंपैरेटिवली प्रतीक, इफ आई जस्ट मूव टू माय थोड़े से फाइनल वन टू क्वेश्चंस, इसके अलावा जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं जो कि अब प्रिपेयर इस बार कर रहे हैं, तो 40 डेज कहीं ना कहीं बचे हैं, आप उनको क्या मतलब मैसेज देना चाहोगे कि कैसे प्रिपरेशन को मतलब कुछ अगर टिप्स आपको देनी हो कैसे रखें, और अगर मान लो नहीं रिजल्ट अच्छा जाए तो फिर आपको नहीं रुकना चाहिए, ये वाले पे आप क्या कहोगे? सर, जब बेस्ट एक जो थंब रूल मैंने सीखा है कि वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप ये हमेशा सोच के चलिए कि वो आप जो मेहनत है वो आपके हाथ में, द रिजल्ट इज नॉट योर हैंड। बिकॉज आपकी इट इज द कम्प्लीटली इट इज द गॉस्पेल ट्रूथ की डेडिकेशन परसिवरेंस ये चीज़ें मैटर करती है। बट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ लक दैट ऑल्सो हेल्प्स यू। हर चीज़ें हो सकता है आप कुछ चीज़ करके आए, गलतियाँ होती है, हर बार होती है। पर ये कि आपको रिग्रेट ना हो एंड में कि आपके पार्ट में कोई कमी रह गई। आप हमेशा ये कोशिश करें कि इफ यू आर सेटिस्फाइड विथ योर प्रिपरेशन, देयर इज नो नीड टू वरी। बिकॉज व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द CUET LLM, I was just like in a do or die situation, because I thought कि if I want to take if I want to do an LLM, I will go for the BHU or the D only। तो ये चीज़ें होती है। हो सकता है आपका रिजल्ट अच्छा ना भी आए, बट इफ़ यू हैव डन जस्टिस विथ योर स्टडी, इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड टाइम इन होनिंग योर स्किल सो फार एज द लॉ फील्ड इज कंसर्न, आपको कभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज इफ यदि आपने स्किल सेट अपना डेवलप किया है, यदि आपने जस्टिस किया है, यदि आपने स्टडी प्रॉपर करी है अपने लॉ स्कूल्स में, तो अल्टीमेटली आप यहाँ पे नहीं एक्सेल, क्योंकि लॉ फील्ड का सर इतना वास्ट जो स्कोप है, आप कहीं भी जाएंगे आप एक्सेल करेंगे। तो ये एक चीज़ रहती है कि यदि आपने अच्छे से किया है सब कुछ, यदि आपने, तो बिकॉज़ इट्स नॉट कि यही नहीं कि सिर्फ़ बीएचयू में पढ़ने वाले ही बच्चे करते हैं। हमने देखा है कई बच्चे जो सिर्फ़ ट्रेडिशनल कॉलेज, जो मीडियाकर कॉलेजेस से पढ़ रहे हैं, उनने भी बहुत एक्सेल किया है लाइफ़ में। सो इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप बीएचयू से ही करेंगे तभी आप लाइफ़ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही की है कि द पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन और कुछ भी अगर आप अचीव करना चाह रहे हो तो उसके अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी गलतियों से सीखो, रादर देन ये सोचने के लिए कि आप उस गलती की वजह से आपके खराब वो हो इंसान हो या आपसे हो नहीं पाएगा, वो चीज़ कहीं ना कहीं नहीं वर्क करती है। वो अगर आपकी उस तरीके की अगर आपकी वो है, आप कह सकते हो पर्सोना है, या फिर आपको उस तरीके की पर्सनैलिटी, तो आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, उस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके ही आप कहीं ना कहीं सक्सीड कर पाओगे। बिकॉज जो सक्सेस होती है वो एक बार नहीं, कई बार प्रयास करने के बाद ही किसी इंसान को अपना अचीव होती है। सिंपल सी बात है, फैक्ट है। तो आई थिंक कि Sure. जो भी बातें आज आपने प्रतीक इस पूरे सेशन में करी, आई थिंक कि स्टूडेंट्स उससे काफी कुछ सीखेंगे। साथ ही में जो एक को पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है कि स्टूडेंट का जो कि बीएचयू में अभी पढ़ रहा है, चीजें एक्सपीरियंस कर रहा है, वो भी आई थिंक सो स्टूडेंट्स को काफी हेल्प करेंगी ये डिसाइड करने में कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू कौन सा ऐसा कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है उनके लिए अच्छी कौन सी रहेगी, क्या मतलब चीजें कंसिडर करनी है। तो आई थिंक दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू Yes. मतलब कि आपका मतलब और भी जो चीजें हैं अच्छी जाए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू वेरी मच प्रतीक। Thank you so much, sir.